Good afternoon, ma'am. Very good afternoon, Anjali. Good afternoon, ma'am. Okay, we will be starting the class within next few minutes. We will wait for the other students also to join the class. Okay, so Okay, today ma'am. today is physics class, as I told you, no? So just take out your physics notebooks. What? Chemistry I told you, ना मंडे को बोला था मैंने आपको वेडनेसडे को आपका फिजिक्स है फिर क्यों लेके आए होमवर्क दिया था मैंने लास्ट टाइम आपको फिजिक्स कंप्लीट हो गया थैंक्स just show me your homework. Tomorrow, okay, you haven't got this. Yes, Anjali, have you completed the homework? Ma'am, can I show you tomorrow? Okay, just allow me a minute. I will be back.
And वॉइस नहीं आती है बच्चों एक्चुअली हाँ महलप्रीत और अक्षिका तो नहीं आएंगे हर्षवर्धन को मैं बोल रही हूँ एक्चुअली उनके स्कूल यस मैम, उन्होंने एक्चुअली मुझे बोला था कि मैं आपको बोल दूँ उनकी क्लासेस अगर डू सके तो 5 वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना 5 to 6 एक ही घंटा बचता है बस हम कैसे स्केड्यूल करें ये हो जाता है बाकी रिकॉर्डिंग ऑन ना वो भी ठीक है. Okay, Anjali, what was the homework? Have you completed it? Ma'am, I forgot that today is the physics class. Yeah, how you are forgetting everyone? I told you on Monday also that next class will be physics class. So mark it down. Ma'am, I will send you the homework after the class. Ma'am, I will send you the So you homework after haven't the class. completed? Have you completed or no? No, ma'am. Okay, so that means it's been a week and आपने complete क्यों नहीं किया बच्चों? आपको पूरा एक वीक मिला है. लास्ट वेडनेसडे थर्सडे मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट? फिर क्यों नहीं कंप्लीट किया आपने? You got Sunday also in between. Okay, so in last class we have discussed about speed and velocity. Have we completed it? Just show me the notes. कॉपी हम नहीं है अच्छा, कॉपी नहीं है आपके पास में? ओके फाइन, लेट मी चेक अगर यहाँ पे स्लाइड अवेलेबल है. वेट अ मिनट. Is the screen visible to you, Anjali? Is the screen visible to you? Yes, ma'am, it is visible. Subject physics is there. Okay, your homework was up to question number 5 LDM. क्वेश्चन नंबर 10 पे So next class में मुझे दूसरे लैपटॉप सिस्टम में लेती है. Same here. So I guess we have discussed about speed or velocity or not in the previous class. Not in detail, I guess. हमने discuss किया था speed and velocity के बारे में. Anjali, can you just cross check your notes? What we have covered in the last class, the last topic, have we discussed about speed and velocity? Are you there, Anjali? Yes, ma'am, I'm checking. Please let me know. Ma'am, maybe we have done. Okay, we have discussed. So in previous classes, we have discussed about distance and displacement. We have discussed about scalar quantity, vector quantity. We have discussed about speed and velocity also. I guess we have already discussed about non-uniform motion also along with uniform motion. क्या हमने ये discuss कर Yes, लिया ma'am. था last? Yes. Yes, Okay. ma'am. Today we will be discussing the next topic, that is acceleration. Okay, before that we will be discussing few of the graphs. हम कुछ graphs discuss करेंगे, distance time graph या फिर displacement time graph, just to understand कि हमारा जो motion show हो रहा है वो हमारा uniform है या फिर non uniform है. Okay, so I am just drawing few of the graphs. आप लोग को identify करना है and you need to tell me that it is a distance, it is uniform motion or non uniform motion. Is it clear to all of you? Okay. Yes, ma'am. So suppose this is the first graph we are drawing. Okay, before that,
You just need to know that if we are plotting a graph, suppose you can write it down also in a note form. If we plot a distance time graph, distance time plot the distance time graph. I'm just having a little issue. So if we plot a distance time graph, we can calculate the speed of an object from its slope. What it means? What it means? इसका मतलब क्या आप लोगों को पता है स्लोप क्या होता है? Do you know? Okay. So यहाँ पर इस स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि अगर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, सपोज दिस इज वेरी गुड इवनिंग हर्षवर्धन. Very good evening, Harshvardhan. Am I audible to you? Am I audible? Good afternoon, ma'am. Yeah, very good afternoon. Am I audible and clear to you? Yes, ma'am. Okay. So basically, we have just started. Today we are going to the physics topics. So the first statement is that अगर हम distance time graph बनाएंगे, तो अगर हमें speed calculate करनी है, तो हम क्या calculate करेंगे उसका slope. What is slope? Slope क्या होता है? जैसे for example हमारे पास में ये graph है. Suppose हमने यहाँ पे जो हमारा y axis है, इसको हम distance axis बोलते हैं. Okay? यहाँ पर हम क्या शो करने वाले हैं? Distance. डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर? नो नो, नॉट मीटर पर सेकंड. लेंथ, डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं हम? मीटर या किलोमीटर में, राइट? इसकी एसआई यूनिट मीटर होती है. एंड जो हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे सपोज वी आर रिप्रेजेंटिंग द टाइम. टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है? सेकंड, राइट? सो सपोज हमारे पास में कोई भी कर्व है, सपोज वी आर हैविंग दिस कर्व. ये हमारा कोई कर्व है, ठीक है? तो स्लोप का मतलब क्या होता है? यहाँ पर अगर हमारे पास में एक एक्सिस पे डिस्टेंस है, सपोज यहाँ वाई एक्सिस पे डिस्टेंस है और एक्स पे क्या है? टाइम है. इसको हम रिवर्स भी कर सकते हैं. टाइम को हमने वाई एक्सिस पे डाल दिया और यहाँ पे एक्स एक्सिस पे क्या डाल दिया? डिस्टेंस, ठीक है? तो अगर जब भी हम डिस्टेंस और टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका जो स्लोप होगा इस कर्व का, स्लोप क्या होता है? आई विल टेल यू. उस स्लोप से हमें क्या फाइंड आउट करते हैं? स्लोप से हमें क्या पता चलता है? स्पीड. ओके, स्लोप क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास में कोई भी 2 पॉइंट्स, स्लोप हम ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, से दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज द पॉइंट, ठीक है? इनके बीच में ये जो स्ट्रेट ये जो लाइन जा रही है, राइट, ये दिस इज द स्लोप, ठीक है? अब हम इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे यहाँ पर अलोंग, इस पे फॉल करेगी ये y एक्सिस के पैरेलल. हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से जो कि फॉल करेगी x एक्सिस पे, और यहाँ से हमें इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा जो
एंड सिमिलरली जो हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सपोज ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट ए है और ये हमारा कोऑर्डिनेट बी है, और इस कर्व का हमें स्लोप निकालना है, हमें स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, हम आइडेंटिफाई करेंगे इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है। कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स पता करने के लिए हम इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और सिमिलरली हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। सिमिलरली हम पॉइंट बी से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पे, और परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे। अब जो पॉइंट ए है ये एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस टाइम। तो सपोज यहाँ पे हमारा कोई टाइम t1 है, ठीक है। सिमिलरली जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे कोई टाइम रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये एक्सिस क्या शो कर रहा है, टाइम। तो सपोज यहाँ पर अभी टाइम की वैल्यू हमारी सपोज t2 हो गई, ठीक है। सिमिलरली हमारा y एक्सिस पे भी हम चेक करेंगे, एक कोऑर्डिनेट जब y पे परपेंडिकुलर जहाँ पे टच कर रहा है वहां पे सपोज जो हमारा डिस्टेंस है वो x1 है, ठीक है, और b पॉइंट पे उसका डिस्टेंस कितना आ रहा है, सपोज x2 आ रहा है। तो अभी आप बताइए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे पॉइंट a के, a के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1 t1। अच्छा पहले बताइए, जब भी किसी कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कोऑर्डिनेट्स किस फॉर्म में लिखते हैं, आप लोग को पता है, मैथ्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कैसे लिखते हैं बताइए हर्षवर्धन। Yes, ma'am. How we used to write the coordinates. Ma'am, first we write x-axis, then y-axis. Okay, is it the idea of any of our class student, Yes, Karthik? Karthik. Ma'am, Karthik. Karthik is in our class. No, na? Ma'am, he is in our class. When? Okay, the new joinee. Okay, got it. Ma'am, he is since 8th. Okay. Very good evening, Karthik. Excuse me, ma'am. Yes. I am having homework. What? Ma'am, I have doubt in my homework. Okay, the homework which I gave or school homework? The homework which you gave. Okay, ask it. I'm in question number 5 and question number 8. Question number 5 and 8. Okay, I will be covering it after covering this topic. ठीक है, एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा फिनिश कर देते हैं, उसके बाद में हम आपके डाउट्स को भी डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो या कार्तिक, वी आर डिस्कसिंग कि जब भी हम कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे और उस पे हमारा जो कर्व होगा उसका अगर हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर डिस्टेंस की जगह पे हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिख दिया, राइट, अगर हम इसको रिप्लेस कर देते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, तो किसके फॉर्मूला में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा था, वेलोसिटी। हाँ, तो इसका जो स्लोप होगा वो हमें क्या शो करेगा, इसका स्लोप हमें वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पर अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो वी कैन कैलकुलेट द स्पीड, और अगर स्टिल आपको वेलोसिटी चाहिए तो अगर ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आपको किलोमीटर पर आवर में आ रहा है सपोज, तो आप उसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में, तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वेलोसिटी में, ठीक है। ये सब चीजें हम जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा, बट अभी के लिए इतना ध्यान रखना है आपको। ओके, मूविंग ऑन। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि सपोज हमारे पास में ये कोई कर्व है और जो हमारा वाई एक्सिस है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटिंग द टाइम। यहाँ पर दो पॉइंट्स हैं, सपोज ए एंड बी। ए के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हमेशा आप लोग को आई थिंक ये पता होगा, मैथ्स में कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, we always used to draw two perpendiculars along the two axes। हमने यहाँ पे x एक्सिस पे लगाया तो x एक्सिस किसको शो कर रहा था, टाइम को। सो दैट्स व्हाई यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएगा जहाँ पे ये इसको वो करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वो t1 रिप्रेजेंट करेगा, ऐसे b के लिए t2 और यहाँ पर y एक्सिस पे क्या शो करेगा, उसका डिस्टेंस x1 है, x2 फॉर द 2 पॉइंट्स। नाउ आई वाज आस्किंग that how we used to write the coordinates। मैथ्स में कैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं किसी भी पॉइंट के, First we write the point of x-axis, then we write y-axis. Yeah. So similarly, can you tell me that what are the coordinates of A and B over here?
T1 and X1. What? T1 and X1. Yes. First, students do not get confused कि हमारा यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट लिखा जाता है उसमें x, y लिखते हैं, तो यहाँ पर भी T1 और X1 है तो हम इसको X1, T1 लिख दें. No, this would be wrong. क्यों? क्योंकि x एक्सिस पे कौन है यहाँ पे? T1 है. x एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट लिखते हैं हम. यहाँ अगर कुछ और x की वैल्यू आपको अलोंग y एक्सिस दे दी है तो डू नॉट गेट कंफ्यूज. ठीक है, उसको हम बाद में ही लिखेंगे. ये जो है हमारा y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो y एक्सिस पे तो x1 है, इसलिए हमने यहाँ पे इसको T1 एंड x1 लिखा है. इज इट क्लियर? आई होप देयर वुड बी नो डाउट. Okay. So similarly, what would be the coordinates for point B? क्या हो जाएंगे इसके coordinates? X2 अभी and मैंने T2. बताया, अभी मैंने क्या बताया आपको, coordinates कैसे लिखते हैं? And X2. T2 and X2. Yeah, exactly. That's what I was saying कि आप ऐसे mistake कर देंगे. X2 T2 नहीं बोलेंगे, इसको T2 and X2 बोलेंगे. Okay, these are the coordinates. तो अगर हमें यहाँ पे slope find out करना होता है तो mathematics में do you know how to calculate the slope if 2 points are given? बताइए. And the distance between the मतलब मैम two coordinates. नॉट डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे देखिए स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे. अभी ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है ना आपका बी और ए कोऑर्डिनेट, हम यहाँ से बी से यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन और यहाँ पे ये दोनों हमारे यहाँ पे मैच कर रहे हैं, इजंट इट? यहाँ पे 90 डिग्री पे दोनों यहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर ये जो लेंथ है बी की, यहाँ से सपोज यहाँ पे हमने इसको कोऑर्डिनेट दे दिया है नेम ओ, तो ये जो है ये किसको शो कर रहा है? ये डेल्टा किसकी वैल्यू चेंज शो कर रहा है? डेल्टा एक्स. डिस्टेंस में चेंज शो कर रहा है या नहीं कर रहा है? कर रहा है ना. ये डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग हमारा कौन है? डिस्टेंस एक्सिस है. तो y एक्सिस के अलोंग जो चेंज है x1 से कहाँ पे पहुंच गए ये ऑब्जेक्ट पॉइंट? b पॉइंट x2 पे पहुंचा है. तो मतलब ये हमारा चेंज इन क्या दिखा रहा है? डेल्टा एक्स वैल्यू है. ठीक है, बट डू नॉट गेट कंफ्यूज. जनरली हम इसको क्या लिखते हैं, सपोज जो हमें स्लोप निकालना होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होती है. डेल्टा वाई मतलब चेंज अलोंग, जस्ट अ सेकंड, ये यहाँ पे आएगा नहीं, नीचे लिख लेते हैं इसको, तो समझेंगे ही. बच्चे जस्ट एक्सक्यूज मी. प्रतिभा, ये चार्जिंग पॉड नहीं बन रहा है इसमें. Okay, so how we used to calculate it in general? जनरली हम कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं? आई एम जस्ट टेलिंग दैट अगर हमें इसको निकालना है वी यूज टू राइट इट. ये क्या होता है? चेंज अलोंग विच एक्सिस? चेंज अलोंग. ये पेन आजकल के बार बार हैंग हो रहा है बीच में.
Okay, so it is the ratio of change along y-axis upon change along x-axis. मैंने कर लिया है, हर्षवर्धन एंड कार्तिक both have joined. Okay, see students, so now do not get confused. यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअली, इसका फॉर्मूला तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x ही होता है स्लोप को फाइंड आउट करने का. दैट मीन्स y एक्सिस के अलोंग जो चेंज हो रही है वैल्यू एंड डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग x एक्सिस. लेकिन यहाँ पर देखिए जो डिस्टेंस है उसको हमने x एक्सिस की जगह पे y एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया है और उसकी जो वैल्यू है वो x के फॉर्म में है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या लिख रहे हैं, डेल्टा x लिख रहे हैं. बट हम इसको रिप्लेस कर देते हैं सो दैट आपको डाउट ना हो. ओके, अगर हमें यहाँ पर चेंज फाइंड आउट करना है A से B तक, तो यहाँ पे टाइम का जो चेंज होगा उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, डेल्टा t. Isn't it so? ये समझ में आया अंजलि, हर्षवर्धन एंड कार्तिक? Yes, ma'am. ओके, तो यहाँ पे हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. ओके, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी ये एक्स्ट्रा हम इरेज कर देते हैं. आई थिंक आपको कोऑर्डिनेट समझ में आ चुका है ऑलरेडी. ये था हमारा x1. ओके, ओके, सो यहाँ पर हम चेंज किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे. सपोज सो यहाँ पर हमारा जो स्लोप है वो कैसे आएगा, स्लोप आएगा हमारा डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. फॉर्मूला इज डिफरेंट बच्चा, ये फॉर्मूला है लेकिन यहाँ पे हमारा y एक्सिस के अलोंग जो चेंज है वो x के फॉर्म में, इसलिए हमने डेल्टा x लिखा है. डू नॉट गेट कंफ्यूज. और इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x की वैल्यू. डेल्टा x की वैल्यू में चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे आप कोऑर्डिनेट से, बताइए. x1 से वैल्यू कहाँ पर जा रही है, x2 x2, तो चेंज कैसे फाइंड आउट करोगे इन जनरल जैसे हम करते हैं, 1 x2 में से माइनस कर दीजिए x1 को. सो x2 माइनस x1, ये हमारा चेंज इन डिस्टेंस आ जाएगा. और ऐसे चेंज इन टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे, t2 माइनस t1. ओके, सो दिस इज हाउ वी यूज टू कैलकुलेट द स्लोप ऑफ अ गिवन कर्व. ठीक है, और इसकी जो वैल्यू आएगी, ये जो स्लोप की हमारी जो वैल्यू आने वाली है, ये किसके इक्विवेलेंट होगी, हमारे स्पीड के इक्विवेलेंट. ठीक है, तो ये काफी बार 1 मार्कर में भी पूछ लिया जाता है आप लोगों से, दैट which physical quantity you will get from a distance time, from the slope of a distance time graph. तो distance time graph के जो आपको गिवन है उससे आप कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं स्लोप से. सो आंसर वुड बी स्पीड. इज इट क्लियर? एंड अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम गिवन है देन व्हाट यू कैन फाइंड आउट, वेलोसिटी. क्लियर? Karthik, have you understood this? yes ma'am. Okay, now we will be discussing the next topic, acceleration. अभी हम acceleration study करेंगे, then we will be discussing few of the cases for the graphs. काफी सारे cases हैं हमारे different graph के लिए, uniform motion, non uniform motion, acceleration भी हम कैसे find out करेंगे अगर हमें graph given है, that also we are going to do. अच्छा, one more thing, we can calculate the speed and velocity either by the formula. अगर हमें values given है तो हम formula से find out कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें ग्राफ गिवन है तब हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, थ्रू स्लोप. इज इट क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है अंजलि? Ma'am, acceleration can be defined as the rate of change of velocity with time. Yeah, very good. So acceleration is the rate of change of velocity. So we can write the statement, the rate of change of velocity is known as acceleration. Okay, why I haven't used the term time? Anjali, as you said, the rate of change of velocity with the time. मैंने यहाँ पे टाइम मेंशन क्यों नहीं किया है? बिकॉज जब हम रेट वर्ड यूज कर लेते हैं तो इसका मतलब ही क्या होता है, किसके रेफरेंस में हम जज कर रहे हैं हमारी फिजिकल क्वांटिटी को, अलोंग विद टाइम. ठीक है, जहाँ पे भी रेट वर्ड आ जाता है उसका मतलब यही होता है कि हम टाइम के साथ में
उसको कंपेयर कर रहे हैं कि उसकी वेलोसिटी चेंज होती है या नहीं होती है। दूसरा फॉर्मूला इसका सॉरी दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है? और हम इसको अगर हम रेट वर्ड यूज नहीं करते देन वी कैन राइट इट इज द चेंज इन वेलोसिटी is the change in velocity. The change in velocity per unit time. Okay, we can use any of the definition. So यहाँ पर देखिए हमने rate word use नहीं किया. That's why we need to mention that it is per unit time. Change in velocity किसके साथ में होगी? Along with changing in time. Now, do you know what is the formula for acceleration? Velocity upon time. Velocity upon time. Okay, very good. See, I think in previous class, how much topic you have covered in this chapter? सिर्फ speed and velocity तक किया था आपने. Then this would be a new topic. Yes. Okay, so basically we can write the formula. Acceleration would be denoted by what? What is the symbol used for acceleration? We would use the symbol A for this one. Okay. It is change in velocity. The formula would be change in velocity upon time taken. Time taken, that means velocity को change होने में जितना time लगेगा उसको हम बोलेंगे time taken. अच्छा, suppose there is an object which is moving with an initial velocity. What do you mean by initial velocity? कार्तिक, initial velocity का मतलब क्या होता है? Starting velocity. Starting velocity. That means कोई भी object starting में उसकी speed क्या थी, उसकी velocity क्या थी? That is the initial velocity. और lastly जब भी हम कोई भी केस मेंशन कर रहे हैं फाइनली उसकी वेलोसिटी क्या थी, दैट वुड बी फाइनल वेलोसिटी. तो हम इसको एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. ओके, अपॉन टाइम टेकन. टाइम टेकन को हम काफी बार डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज एक तरीके से ये चेंज इन टाइम है, राइट? व्हाट वुड बी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? ये तो हमने लैंग्वेज फॉर्म में ही लिखा है अभी तक फॉर्मूला, राइट? अभी अगर हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में फॉर्मूला लिखेंगे इट वुड बी v माइनस यू अपॉन टाइम. टाइम भी क्या होगा? t2 टाइम माइनस t1 टाइम. सपोज इनिशियल वेलोसिटी के टाइम में t1 टाइम था एंड फाइनल वेलोसिटी के टाइम t2 टाइम था, ठीक है? सो दैट इज व्हाई हम चेंज इन टाइम या फिर टाइम टेकन कैसे निकालेंगे? फाइनल टाइम में से माइनस करेंगे इनिशियल टाइम को, राइट? सो दैट इज व्हाई वी कैन राइट इट दिस वे. और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट वुड बी डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. यहाँ पे डेल्टा मतलब क्या होता है? डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है? Change. चेंज, ठीक है? सो दिस इज वन ऑफ एन इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो कि आप लोग के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में यूज होता है. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू यूज टू लर्न दिस फॉर्मूला एज वेल. ओके, एंड You mean velocity. व्हाट? U means initial velocity. या u represents initial velocity. ठीक है, we can write it. Where a is acceleration, this we already know. V is the final velocity. U is the initial velocity. Delta. Are having any doubt in this formula? कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया ये फॉर्मूला हमने कैसे डिराइव लिखा है?
Karthik, have you Ma'am. understood this? Yes. मैम आज अक्षिता मैम ज्वाइन नहीं कर पाएगी मैम, वो कहीं बाहर गई है मैम। Okay. And Meherpreet also today is not joining, no? मैम कुछ स्कूल के काम से गई थी अक्षिता, उसकी मॉम का फोन आया था मैम। Already know. Not an issue. She can go through these recorded videos. Okay, so U is initial velocity. What is T2? Final time. What is T1? That's initial time. Okay. Is it clear to all of you? Now tell me, acceleration is a vector quantity or a scalar quantity? Vector. Acceleration क्या होगी? Vector quantity होगी because इसमें कौन-कौन use हो रहा है? Formula में कौन आ रहा है? Velocity. Velocity खुद क्या है? Vector quantity. So we can write it is a vector quantity. Vector quantity कौन होती है अंजलि? मैम जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। What do you mean by magnitude? Example के साथ बताइए कार्तिक। मैम न्यूमेरिकल वैल्यू जैसे मैम 1 kg ऑफ मास। या सो 1 kg ऑफ मास में मैग्नीट्यूड क्या होगा? 1 kg। नो अभी आपने क्या बोला? मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, बट आप बोल रहे हो 1 kg। kg तो यूनिट आ गई यहाँ पे along with the numerical value. So what would be the correct answer? One only. ये बच्चा don't do मैम these 1 नहीं थी। don't do such mistakes. जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू बोल रहे हो और आपको पता है तो then why you are using SI unit or any of the measuring unit along with that numerical value while answering? Okay, please pay a little attention towards this. Okay, now we will be deriving the SI unit for acceleration. ठीक है, पहले बताइए फॉर्मूला क्या है acceleration का? Just now we have derived it. डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, या फिर हम लिख सकते हैं v माइनस u अपॉन v, राइट? अच्छा बताइए व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड। Okay, now tell me a thing. Just a second, why it's not working? Okay, see, A is equivalent to V minus U upon T, right? Now tell me what would be the SI unit for time? Time की SI unit क्या होगी? Second. Second होगी. Fine. And what would be the SI unit of this quantity, V minus U? मीटर पर सेकंड। By meter per second? यस। What? Your voice is breaking. आदित्य, इसकी ऐसा अगर हम v माइनस यू करेंगे हमें मीटर पर सेकंड क्यों मिलेगा? बताइए। सोचो, जनरल एग्जांपल से रिलेट करो। मैम बिकॉज मैम वेलोसिटी इज डिस्प्लेस। So your voice is breaking. बताइए, अगर मैं आपको बोल रही हूँ यहाँ पे v माइनस यू हम करेंगे, हमारी जो मेजरिंग यूनिट आएगी, रिजल्टेंट यूनिट, दैट विल आल्सो बी इन मीटर पर सेकेंड। एक बात बताइए, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है उसकी मेजरिंग यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है उसकी मेजरिंग यूनिट मीटर पर सेकेंड। जब दोनों सिमिलर क्वांटिटीज है मतलब उनकी सेम मेजरिंग यूनिट्स है, तो उसमें जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो सेम ही तो यूनिट आएगी, राइट? सो इसका आंसर सिंपल सा है कि बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर यूनिट्स, सो इवन इफ वी ऐड और इफ वी डू द सब्ट्रैक्शन, वी विल बी गेटिंग द सिमिलर मेजरिंग यूनिट। इट इज जस्ट लाइक 2 kg एप्पल में अगर आप 4 kg एप्पल्स ऐड कर रहे हैं, या फिर 4 kg एप्पल्स में से -2 kg एप्पल्स कर रहे हैं, तो क्या ये 2 लीटर एप्पल हो जाएंगे? कितना होगा?
केजी में ही होगा ना, बिकॉज सेम यूनिट में से जब आप मेंशन कर रहे हो, माइनस कर रहे हो या फिर प्लस कर रहे हो, ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी जो रिजल्टेंट यूनिट आएगी वो भी सेम ही आएगी. सो दैट इज व्हाई यहाँ पे v माइनस यू भी जो आएगा हमारा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा. नाउ सी, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ये देखा होगा, ये क्या है, मीटर पर सेकेंड, राइट. और यहाँ पर भी ये सेकेंड है, तो इसको मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं. Isn't it so? ये जो मीटर पर सेकंड था इसको हमने नीचे भेज दिया, राइट. तो ये मीटर पर सेकंड और ये सेकंड, तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और हम इसको और क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इस तरीके से भी लिख सकते हैं. सो ये जो होगी, इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की. या सो यू कैन नोट इट डाउन. इट हैज एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो करता है कि ये फिजिकल क्वांटिटी कहाँ पर होगी, डिनोमिनेटर में. या डिनोमिनेटर में होगी. अगर डिनोमिनेटर में ये नेगेटिव वैल्यू होगी इसकी पावर, तो ये कहाँ आ जाएगा, न्यूमरेटर. न्यूमरेटर. ओके, दिस इज इन एमकेएस सिस्टम. एमकेएस सिस्टम के अंदर ये इसकी एसआई यूनिट है. सो सीजीएस में क्या हो जाएगी, बताइए, मीटर का क्या हो जाएगा, पर सेकेंड. क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्यों, बिकॉज जो सेकेंड होता है वो तो एमकेएस सिस्टम और सीजीएस सिस्टम दोनों में ही क्या है, सेकेंड सेकेंड में है, राइट. मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाता है और सेकेंड सेम रहेगा. सो दैट इज व्हाई इट हैजंट चेंज्ड. और कौन सी अदर यूनिट हो सकती है इसको मेजर करने की, किलोमीटर पर आवर. यस, अदर मेजरिंग यूनिट्स हो जाएंगे इसकी अदर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होगा. डू नॉट राइट पर आवर, वरना वो स्पीड की यूनिट हो जाएगी या फिर वेलोसिटी की अदर मेजरिंग यूनिट हो जाएगी. इज इट क्लियर? Okay, now the next term comes retardation. Retard. Have you ever heard this term before? Decrease in velocity. Decrease in velocity. Okay, fine. See, retardation का मतलब क्या होता है, जब हमारा acceleration जो होगा वो negative value में होता है, ठीक है. यानी कि जब हमारी velocity decrease हो रही होगी, उससे पहले आप ये समझ लीजिए जो acceleration होगा उसकी values क्या होगी, हमेशा increase ही होगा. acceleration positive value होगी या negative होगी या zero होगी, बताइए. मैम जीरो या फिर पॉजिटिव होगी. जीरो या फिर सिर्फ पॉजिटिव होगी. ओके, ठीक है. हमने बोला चेंज इन वेलोसिटी. क्या 50, सपोज हमारी 50 मीटर पर सेकेंड इनिशियल वेलोसिटी है और ये इंक्रीज होके 70 मीटर पर सेकेंड हो रही है, ठीक है. तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो रही है हमारी, इंक्रीज. इंक्रीज हो रही है. वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पे हमारा जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, अगर हम 70 माइनस 50 करेंगे तो ऑब्वियसली वैल्यू क्या आने वाली है, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी, राइट. लेकिन क्या ऐसा नहीं होता है, जब आप ड्राइविंग करते हैं आपकी स्पीड हाई होती है एंड यू यूज टू लोअर इट डाउन, करते हो ना. तो अगर उस केस को हम कंसीडर करें तो सपोज अगर हमारी वैल्यू कितनी थी, सपोज अभी आपकी स्पीड थी 70 मीटर पर सेकेंड थी एंड आपने सपोज ट्रैफिक में हो, सो यू हैव रिड्यूस्ड इट टू 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है. यहाँ पर आपने जो वेलोसिटी चेंज हुआ है, वेलोसिटी क्या हुई है आपकी, डिक्रीज हुई है. वेलोसिटी डिक्रीज होगा तो आप क्या करेंगे, v माइनस यू. तो 50 माइनस 70 करेंगे कितना आएगा, दिस इज u, दिस इज v, दिस इज u, दिस इज v. सो v माइनस यू करेंगे क्या आएगा,
-20। यहाँ पर v माइनस यू आ जाएगा हमारा नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे जो हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स टेक एन अनदर केस। क्या एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव के अलावा जीरो भी हो सकता है? बताइए, हो सकता है क्या यस ऐसा? हाउ? मैम। कौन से केस में होगा? मैम स्पीड इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम होंगी मैम। यस, अगर हमारी 50 मीटर पर सेकंड स्पीड थी और हम उसको 50 मीटर पर सेकंड ही कर रहे हैं, दैट मीन्स हमारी जो u और v है, u और जो v है यहाँ पे इक्वल है। यहाँ पे हम बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी इक्वल है, तो v माइनस यू कितना आ जाएगा हमारा? सेम वेलोसिटीज को माइनस करोगे तो क्या आती है वैल्यू मैथमेटिकली? जीरो ही तो आएगा। 50 में से यस 50 माइनस करेंगे, जीरो आएगा। तो यहाँ पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट है मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, नो चेंज। वी कैन आल्सो राइट इट चेंज। नो चेंज। जब चेंज नहीं होगा तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको तीनों केसेस समझ में आ गए, कब जीरो होता है, कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है एक्सेलरेशन। इज इट क्लियर? मैम एक बार तीनों मैम नीचे कर दो मैम, केस लिखने थे मैम। सेकेंड, ये हमने केसेस डिस्कस किए हैं कि कैसे जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो कुछ केसेस में पॉजिटिव होता है, कभी कभी नेगेटिव होता है और जीरो भी होता है। कैसे होता है ये हमने विद एन एग्जांपल हमने समझ लिया। आई होप इसमें किसी को डाउट नहीं है। सो हम बोल सकते हैं, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट में डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट की भी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, सॉरी, डिस्टेंस की वैल्यू जीरो या फिर नेगेटिव हो सकती है? नहीं, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसी तरीके से अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा वो पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है। पॉजिटिव आने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, इंक्रीज, और नेगेटिव आने के लिए डिक्रीज, और जीरो आने के लिए कांस्टेंट। सो क्या हम बोल सकते हैं कि जब एक्सेलरेशन की वेरिएबल वेलोसिटी होगी तब एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड होगा, ईदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। अच्छा, अभी हमने ये जो डिस्कस किया नेगेटिव, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होती है देन हम इसको क्या बोलते हैं, देन इट इज नोन एज रिटार्डेशन। ठीक है, जब एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या फिर हम इसको डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। हम इस डेफिनेशन को लिख लेंगे अभी, बट ये जस्ट आपको समझाने के लिए अलग से हम लिखेंगे इस डेफिनेशन। हैव यू ऑल नोटेड दिस? Anjali, Harshvardhan and Karthik, have you noted this? Yes or no? Vijay, am I audible Yes, or no? yes, ma'am. Okay, so shall we move on to the next topic? Yes, ma'am. Okay. So just note down the point that it can be. Okay, make sure that we are writing it under the heading acceleration only. तो यहाँ पे मैं बार बार mention नहीं कर रही हूँ कि हम किसकी properties के बारे में बातें कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे directly लिख सकते हैं that it can be positive, negative और zero. कौन positive, negative, zero हो सकता है, acceleration. Okay. Now next, अब आप ये टर्म लिख लीजिए, रिटार्डेशन क्या होता है। रिटार्डेशन या फिर डीएसेलरेशन।
when the magnitude of acceleration is negative, then it is known as retardation or deceleration. Is it clear? Okay, now I will be asking you few of the cases. एक दो cases हम और discuss कर लेते हैं. Suppose, अच्छा जब हमारा negative positive sorry जो हमारा acceleration है वो positive होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? Positive acceleration. जब negative होगा तो उसको क्या बोलते हैं? Negative acceleration. ठीक है. अभी इसमें भी जैसे हमने velocity में discuss किया और speed में discuss किया कि speed भी uniform और non uniform हो सकती है और velocity can also be uniform और non uniform. उसी तरीके से acceleration जो होता है that can also be uniform and non uniform. कैसे होगा हम कुछ cases में discuss करेंगे अभी थोड़ी देर में. Before that, just note it down. Okay, if velocity is positive, अगर हमारी जो velocity है वो क्या है? Positive है. And acceleration is negative. So इसका मतलब क्या होगा? ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है या फिर डिक्रीज हो रही है यहाँ पे? बताइए. स्लोइंग डाउन हो रहा है यहाँ पे. अगर किसी ऑब्जेक्ट okay just a second I just skipped one thing. If velocity is positive and acceleration is negative or vice versa, that means अगर हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव है या फिर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और जो वेलोसिटी है दैट इज नेगेटिव, तो दोनों ही केसेस में हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी स्पीड क्या हो रही होगी? स्लो डाउन हो रही होगी. और अगर दोनों ही पॉजिटिव है, इफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन बोथ आर हैविंग पॉजिटिव वैल्यू, तब ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही होगी? स्पीड अप. ठीक है, स्पीड इंक्रीज हो रही है. So ये भी आपसे 1 मार्कर में कभी कभी पूछ लिया जाता है. So make sure that you remember this. So note it down. If velocity is positive and acceleration is also positive or vice versa, then object is speeding up. Is it clear? मैम एक बार ऊपर से बता दो मैम, मैं गलती से रिमूव हो गया था, नेट चले गया था मैम. सर हम डिस्कस कर रहे हैं रिटार्डेशन और डीएक्सेलरेशन. समझ में आ गया था आपको? नो मैम, मैं तो मैम वो बता रहे थे ना वेलोसिटी के बारे में मैम, कि मैम इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी या फिर जीरो हो जाएगी मैम. जस्ट बाद में हमने डिस्कस किया कि अगर हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आती है जब भी, उस केस को हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो डीएक्सेलरेट हो रही है, या फिर उस केस को हम रिटार्डेशन का केस बोलते हैं. सो दैट मींस डेफिनेशन हो जाएगी रिटार्डेशन की, इफ व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज नेगेटिव देन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अंडर रिटार्डेशन और अंडर डीएक्सेलरेशन. नेक्स्ट हमने डिस्कस किया अगर वेलोसिटी की जो हमारी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव है और जो एक्सेलरेशन है उसका जो मैग्नीट्यूड वो नेगेटिव है, या फिर रिवर्स कर दें हम इसको, मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो गई और एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो गया, तो इस केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी उसकी स्पीड
डाउन हो रही होगी, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी स्लोइंग डाउन। और अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ही पॉजिटिव हैं तो इस केस में हमारी जो ऑब्जेक्ट हो रही होगी उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज स्पीडिंग अप। बस इतना हमने डिस्कस किया। इज इट क्लियर नाउ? हैव यू मैम अंडरस्टूड अगर दिस? यस। मैम वेलोसिटी पॉजिटिव है तो मैम एक्सेलरेशन तो मैम पॉजिटिव ही होगी। नहीं, यहाँ पे डिफरेंस हो सकता है, ये हम केस स्टडी करेंगे बाय यूजिंग सम एग्जांपल। ठीक है, जब हम इनको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, जब आप कैलकुलेट करोगे कि कैसे हमारा यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है एक्सेलरेशन, वो न्यूमेरिकल्स आप डिस्कस करोगे तभी समझ में आएगा उसमें। ठीक है, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अभी के लिए इतना क्लियर हो गया आपको यहाँ पर? ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और स्पीड। जिस तरीके से वेलोसिटी और स्पीड यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म थे, उसी तरीके से एक्सेलरेशन भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म हो सकता है। कब किस केस में यूनिफॉर्म हो सकता है एक्सेलरेशन बताइए? अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो? अच्छा, आई विल बी गिविंग यू एन एग्जाम्पल। आप मुझे बताइएगा कि यहाँ पर जो हमारा एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म होगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म होगा। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए, यहाँ से ऑब्जेक्ट मूव कर रही है पॉइंट बी पर, फ्रॉम बी मूविंग टू सी एंड फ्रॉम सी मूविंग टू डी पॉइंट। ओके, सपोज इनिशियली द ऑब्जेक्ट वाज एट रेस्ट, यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी है? सपोज 0। टाइम इज ऑल्सो 0 एट दिस पॉइंट। Suppose after 5 minutes, okay, we are talking about these all positions after an interval of 5 minutes. So अगर first A point के reference में हम देखें, C point पे हमारा time period हो जाएगा suppose 10 minutes and next 5 minutes that means 15 minutes. Suppose A to B जो object move कर रही है, B point पर जो object है उसकी velocity है 2, okay, it could be 2 meter per second. At C point, its velocity is 4 meter per second. Okay, and at point D, it is 6 meter per second. यहाँ पर मुझे बताइए वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 2 यस, +2 क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। B to C भी वेलोसिटी क्या हो रही है? +2 इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी, राइट? And from C to D also velocity is increasing by +2 meter per second, right? And यहाँ पर अगर हम टाइम इंटरवल देखिए, टाइम इंटरवल हमारा क्या है? कांस्टेंट है, चेंज। यहाँ पर भी कितना हो रहा है? इंक्रीज। 5 मिनट का इंक्रीज हो रहा है टाइम पीरियड हमारा, राइट? yes 5 minute increase. So what we observe over here is कि टाइम के साथ साथ, do you remember the definition? बोला था हमने the rate of change of velocity. तो यहाँ पर जो हमारा टाइम के साथ में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आ रहा है? एवरी टाइम क्या हो जा रही है? वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। और कितने से इंक्रीज हो रही है? मैग्नीट्यूड कितना इंक्रीज हो रहा है? हर बार +2 हो रहा है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो वेलोसिटी में चेंज है वो कांस्टेंट है। देखिए हमारा बी पॉइंट और सी पॉइंट पे सेम वेलोसिटी नहीं है, 2 मीटर पर सेकेंड नहीं है ना? बी पे 2 है तो सी पे कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड है। तो क्या इस केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन होगा? A to B, B to C, C to D एक्सेलरेशन होगा? होगा। और एवरी टाइम अगर थ्रू आउट द केस हम ऑब्जर्व करें तो कैसा एक्सेलरेशन होगा? यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे हमारा ये जो केस है ये हो गया यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। ठीक है, अगर यहीं पर हम इसको रिप्लेस कर दें, सपोज वी आर रिप्लेसिंग दिस वन, अगर हम इस 2 को रिप्लेस कर दें, यहाँ पे सपोज हमारा 3 मीटर पर सेकेंड था और यहाँ पे हमारा बाकी सब सेम है, तो क्या यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, हो रहा है ना? हो रहा तो है वेलोसिटी में चेंज होना ही तो क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो अगर आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, सिंपल सी बात है, वहां पर एक्सेलरेशन हो रहा है। अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो यूनिफॉर्म हो रहा है या नॉन यूनिफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए A टू B कितना इंक्रीज हुआ है? 3 एंड B टू C 2, C टू D 2,
तो यहाँ पर B to C एंड C to D तो 2 to हुआ है, सेम हुआ है, लेकिन A to B जो चेंज हुआ है वो डिफरेंट है. सो दैट्स व्हाई ये हमारा किसका केस बन जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का. इज इट क्लियर? Yes. ओके, सो ये जो डेफिनेशन है ये हम कल राइट अप करेंगे, अभी टाइम हो चुका है हमारा. सो यू कैन जस्ट नोट डाउन द होमवर्क, सिर्फ होमवर्क नोट कर लीजिए आप. Tomorrow also you will be having the physics class only, so make sure that you are bringing your notebooks and do complete your homework. Note it down. Last time I gave you up to question number 5. 10. Yes, ma'am. Okay, so this time you must be completing up to question number 15. Okay. Up to question number 15 would be your homework. If you would be having doubt, okay, Harshvardhan, I just forgot to take your doubts. In the next class, we will be discussing the doubts only, okay? And then we will be moving to the next topic. So note it down, homework is? 15. Yeah, up to 15. Ma'am, can you Don't send the type. 4 questions, ma'am? Yeah, sure, I will be sharing. Okay? Sorry, from 11 onwards. 10th already we have covered. So 11 से 15 आप लोग का होमवर्क है. जो समझ में नहीं आता है, just mark them. We will be discussing them in class only. At least practice them. अगर नहीं भी आ रहा है तो भी at least practice कीजिएगा हमारे घर. Okay? So this is all for today. Thank you. Have a nice day, students. If you have noted you, it ma'am. down, you can leave the class. Thank you, ma'am.